محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. ٹی چندرشیکھر ریاستی آندھرا پردیش کے بیارس پارٹی ریاستی صدر نامزد. ایم ایل سی کی کویتا سے کی ملاقات. آندھرا پردیش سیاست پر کچھ دیر مشاورت. بیارس پارٹی کو مضبوط کرنے کا دیا مشورہ. سنکرانتی تہوار کے پیش نظر رنگولی کے مقابلے. رنگولی ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ. عید و تہوار مل جل کر منانا ہی ہماری پہچان. میں ڈی نیتو کرن. ساوتری بائی پھولے پہلی قابل خاتون اساتذہ. ان کے راہ راست پر چلتے ہوئے نئی نسل کو معیاری تعلیم دے. پھولے کی جینتی تقریب سے ڈی وٹر راؤ. سی ایم کے سی آر ڈبل بیڈ رومز کے نام پر جنتا کو بنانا ہی بے وقوف. ڈبل بیڈ روم منظورہ فنڈز میں گولمال. ایم پی اروند کی صحافتی کانفرنس. اب خبریں تفصیل سے. ایم ایل سی کے کویتا سے آندھرا پردیش کے بیارس پارٹی صدر ٹی چندرشیکھر آر کشور بابو سابقہ آندھرا وزیر پارتھا سارتھی سے ملاقات. آندھرا پردیش میں بیارس پارٹی کو مضبوط کرنے کا مشورہ. ریاست آندھرا پردیش کے بیارس پارٹی کے ریاستی صدر نامزد کیے جانے پر ٹی چندرشیکھر نے پہلی بار ایم ایل سی کے کویتا سے حیدرآباد ان کے گھر پہنچ کر ملاقات کی. انہوں نے ایم ایل سی کے کویتا آندھرا پردیش کی سیاست پر کچھ دیر مشاورت کی اور وہاں کے حالات حاضرہ سے بھی آگاہ کیا. ایم ایل سی کے کویتا نے ٹی چندرشیکھر سے آندھرا پردیش میں بیارس پارٹی کو مضبوط کرنے کا مشورہ دیا. اس موقع پر آندھرا پردیش کے بیارس قائدین سابقہ وزیر آر کشور بابو، سابقہ آئی آر ایس صدر پارتھا سارتھی، بیارس سینئر قائد ڈی شراون و دیگر موجود تھے. رنگولی پروگرام کے ذریعے خواتین نے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کیا اور تیلگو سنسکرتی کی پہچان کرائی. میئر ڈی نیتو کرن کا بیان. شہر کے کلیکٹریٹ گراؤنڈ میں سنکرانتی تہوار کے موقع پر میئر ڈی نیتو کرن اور کارپوریٹروں کی قیادت میں رنگولی پروگرام کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں خواتین، طالبات، دیگر لڑکیوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا. اس موقع پر میئر ڈی نیتو کرن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اب کے حالات کے برعکس خواتین نے تیلگو سنسکرتی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے طور طریقے، تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے بلا مذہب و ملت رنگولی پروگرام میں حصہ لیا. اس رنگولی پروگرام میں حصہ لینے والوں کا اس موقع پر میئر نے اظہار تشکر کیا. اس پروگرام میں مہیلا کمیشن ممبر ایس لکشمی، ڈسٹرکٹ وومنس اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ عہدیدار سندھیا رانی نے مہمان خصوصی حاضر ہوتے ہوئے رنگولی پروگرام کا معائنہ کیا. دور حاضر کے حالات کے مطابق تیار کیے گئے رنگولی پروگرام کی مہمان خصوصی نے ستائش کی اور بہتر ڈیزائن تیار کیے گئے رنگولی کو انعامات تقسیم کیے گئے.
చెప్పేసి అంతా కూడా కలర్ఫుల్గా ముగ్గులు వేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మరి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మా నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకి మా ఆడబిడ్డలకి ఒక ముగ్గుల పోటీ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈరోజు ముగ్గుల పోటీని పెట్టడం జరిగింది. మరి చాలామంది మహిళలు మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. చాలా చక్కగా వేశారు ముగ్గులన్నీ కూడా. మరి మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరపున మెప్మా విభాగం శోభా గారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే ఐసిడిఎస్ మా ఇంద్రక గారి ఆధ్వర్యంలో, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ మెంబర్ సుధాం లక్ష్మక్క గారు ఇక్కడ కూడా రావడం జరిగింది. మా గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా, మహిళలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా మేము చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా రకాలుగా మంచి మంచి కలర్స్ యూజ్ చేసి ఎన్నో చక్కటి కొటేషన్లు, అంటే అందరికీ ఒక ఏదైతే కరోనాకు సంబంధించి కానివ్వండి, రైతులకు సంబంధించి, మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి సంబంధించి చక్కటి కొటేషన్లు. खवातीन लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए सावित्री बाई फुले की खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खवातीन टीचर्स को इनके रास्ते पर चलते हुए तालिबात को बेहतर मियारी तालीम देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई करें। रियासती महिला फाइनेंस चेयरमैन आकुला ललिता, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। शहर के अंबेडकर भवन में बीसी असातिज़ा यूनियन जिला सदर एम विनोद कुमार की क़यादत में सावित्री बाई फुले की 192 जयंती तकरीब मनाएगी और सावित्री बाई फुले इनामात की तकसीम प्रोग्राम के साथ बीसी असातिज़ा यूनियन की 8वीं सालाना तकरीब भी मनाएगी। इस मौके पर जिले के 80 खवातीन असातिज़ा को सावित्री बाई फुले काबिल असातिज़ा का अवार्ड पेश किया गया। इस मौके पर बीसी तरक्याती यूनियन के कौमी सदर जे श्रीनिवास गौड़, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, मेयर डी नीतू किरण, जिला डीईओ दुर्गा प्रसाद ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर काबिल असातिज़ा के अवार्ड मेहमान खुसूसी के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसियों ने बात करते हुए बताया कि सावित्री बाई फुले पहली काबिल असातिज़ा रही। इनके राह रास्ते पर चलते हुए आज की नस्ल को बेहतर मियारी तालीम दे। उस दौर में तालीम में बराबरी का हुक्म दिलाने के लिए फुले की गई खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रोग्राम में बीसी असातिज़ा यूनियन रियासती सेक्रेटरी एस श्रीनिवास राव, बीसी असातिज़ा यूनियन जिला सेक्रेटरी आर गोपाल कृष्णा, रियासती नायब सदर बी अंजनेयरू, ओलंपिक एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी बी नरसैया, बीसीटीयू महिला सदर एन विजय लक्ष्मी, संजीव, राजू, रमेश व दीगर मौजूद थे। पुरस्कार अवार्ड అందుకుంటున్న బీసీ ఉపాధ్యాయులకి, బీసీ ఉద్యోగినులకు అందరికీ ఈ సందర్భంగా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి చాలామంది మేధావులు ఉన్నారు బీసీ చెప్పారు. మా బొబ్బి నరసన్న గారు ఓసీలో పుట్టినా ఓసీలకే అగెనెస్ట్ కౌంటర్ అయ్యిండు. బీసీల మనిషి అయితే 100% నేను బీసీల మనిషినే. నా కులాలు మతాలు అనేది లేదు. నా దృష్టిలో కులాలు రెండే రెండు, ఒకటి హ్యావ్స్, రెండవది నాట్ హ్యావ్స్. ఒక అక్షరాలు నేర్పించి మొదటి మహిళా గురువు. ఈరోజు మేము ఆమె స్ఫూర్తితో ఇంతమంది రెడీ అయినాం. ఇంకా ముందు కూడా అన్ని రంగాలలో మహిళలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కృషితోని మన పెద్దలు, మన ప్రియతమ నాయకులు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు జ్యోతిరావు పూలే మన హాస్టల్స్, గురుకులాలు మరియు మన బాగుంటుందనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు ప్రతి ఇయర్ అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నారు మన వినోదన్న గారు, మన గోపాలకృష్ణ గారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరి ముందుకు రావడము, ఇంకా ఈ ఎంప్లాయీస్కును మన టీచర్స్కు ఇవ్వడము, ఇంకా ముందు కూడా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేద్దాము. ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడారు కాబట్టి ఏదైనా तेलंगाना हुकूमत देही तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपयों का सरफा कर रही। अवाम की जरूरत के मुताबिक हर गांव में एमएलए शकील आमिर तरक्याती कामों पर अहमियत देते हुए मसाइल की यकसुई कर रहे। एमपीपी के श्रीनिवास, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव का बयान। एडपली मंडल जंकमपेट गांव में आज बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी, जिसके जरिए एससी कम्युनिटी भवन की तामीर और माइनॉरिटी कब्रिस्तान की चौदीवारी के लिए मुकामी सरपंच पी साइलू, एमपीपी के श्रीनिवास, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव के हमरा संग बुनियाद डाला गया। इन कामों में पुख्तगी लाते हुए सही वक्त पर पूरा करने के लिए
कॉन्ट्रैक्टरों को ताकीद की। इस मौके पर बात करते हुए कायदीन ने बताया कि बोधन एमएलए शकील आमिर की जानिब से मंजूर किए गए सीडीपी फंड्स के जरिए एससी कम्युनिटी हॉल माइनॉरिटी कब्रिस्तान की चौदीवारी की तामीर के लिए संगी बुनियाद डाला गया। बोधन हल्के में एमएलए शकील आमिर की जानिब से गांव की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी करते हुए देही इलाकों को तरक्याती कामों के जरिए गांव में बहुत से बेहतर तब्दीलियां लाई जा रही। एमएलए शकील आमिर हमेशा अवाम के साथ रहते हुए इनके मसाइल की यकसुई करते जा रहे। एडपल्ली मंडल पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए करोड़ों रुपयों के फंड्स की मंजूरी दे रहे, जिसका इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीसी एम संजीव, सरपंच पी साइड, नायब सरपंच वी विजय, बीआरएस पार्टी मुकामी सदर माजिद, मंडल कायदीन अजय गौड़, शेखर राजू व दीगर मौजूद थे। మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు సిడిపి నిధుల నుండి కేటాయించినటువంటి కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ ఎస్సీ కాలనీలో నిర్మింపడానికి కోసం భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మైనార్టీ గృహయార్డుని ఒక 5 లక్షల రూపాయలతోటి సిడిపి నిధులతోటి కూడా ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఈ జాన్కంపేట్ గ్రామాన్ని ఒక అద్భుతంగా తయారు చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు. గడిచిన 4 సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే ప్రతి రోడ్డు సీసీ రోడ్డు, అలాగే కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్స్, ఇంకా బీటీ రోడ్స్, బాసర్ రోడ్స్ అయితేనేమి, మెయిన్ రోడ్ అయితేనేమి, బస్ స్టాండ్ అయితేనేమి, ఈ విధంగా అద్భుతంగా తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రతి విలేజ్ను కూడా, మండలంలో ఉన్న ప్రతి విలేజ్ను కూడా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ జాన్కంపేట గ్రామానికి వస్తే ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈరోజు సెంట్రల్ లైటింగ్ అయితేనేమి, రూర్బన్లో దాదాపు 30 కోట్ల రూపాయలలో దాదాపు 5-6 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టి అది मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की निजामाबाद आमद पर जावेद एनआरआई व दीगर पार्टी कायदीन की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल। निजामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर का इफ्तिताह, पार्टी परचम कुशाई और जलसे से खिताब। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की दोपहर 4 बजे निजामाबाद आमद पर मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से अहमदी बाजार इकबाल मीनार से जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया और इस रैली में अमजदुल्ला खान खालिद पैदल अपने कारकुनों के साथ बरकतपुरा पार्टी ऑफिस पहुंचे। जगह जगह इनका खैर मकदम करते हुए गुलपोशी की गई। इन्होंने अवाम को हाथ उठाकर सलाम किया। जगह जगह आतिशबाजी की गई। पुलिस की निगरानी में बरकतपुरा पार्टी ऑफिस तक इन्हें लाया गया और वो सबसे पहले पार्टी परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। बाद वो पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस चंद्रशेखर राव मुसलमानों को किए हुए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुके और मैं निजामाबाद पार्टी ऑफिस पर जलसे से खिताब करते हुए कह रहा कि चीफ मिनिस्टर की दफ्तर का ससुराल निजामाबाद है और यहाँ पर हमारी तकरीर होगी और हमारे मुतालबात होंगे तो चीफ मिनिस्टर को जरूर परेशानी होगी। इन्होंने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस बचाओ तहरीक हिस्सा लेंगी। इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में घूम रही, लेकिन रियासत तेलंगाना के अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी, बस मिलत के नाम पर वोट काट रही। निजामाबाद में 16 कॉरपोरेटर मुंतखब होने के बावजूद मसाइल का अंबार है और डेवलपमेंट के लिए फंड्स की इजराई नहीं के बराबर है। मजलिस की क़ियादत कहाँ गई है और मसाइल को हल करने में मुकम्मल हो चुकी है। जिला निजामाबाद के इंदलवई गांव के मसले को मजलिस बचाओ तहरीक हल कर रही, जबकि मजलिस खामोश तमाशाई बैठी हुई है। इन्होंने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक हर घर पहुंचेगी और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करेगी। इन्होंने कहा कि हर घर में लीडर पैदा करें ताकि मुसलमानों की लीडरशिप आगे बढ़े। इन्होंने जावेद एनआरआई की मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। इस जलसे से सदर जिला अब्दुल कादिर साजिद ने मुखातिब करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक की तफसीलात और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मोहम्मद फारूक सीनियर कायद, अब्दुल बासित टाउन सदर, जिला जनरल सेक्रेटरी मीर बशार अली, शेख अमजद व दीगर ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन की जानिब से अमजदुल्ला खान खालिद पार्टी तर्जुमान की जबरदस्त गुलपोशी की गई। खास तौर पर खवातीन ने गुलपोशी करते हुए इन्हें शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हैदराबाद में प्रजा दरबार में कई खवातीन के मसाइल को हल किए जा रहे, जिस पर खवातीन ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में आरमूर, बोधन व दीगर मुकामात से आए हुए मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन ने भी शिरकत की।
आया आज जावेद साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा देकर मजलिस बचाओ तहरीक में आने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले इस मुद्दे को मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत जो है ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना को भूल गई है और उनकी कुछ मजबूरी है कि वो लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अब वो क्या सेकुलर वोटों को काटने के लिए या गैर मुस्लिम फिरका परस्त वोटों को मुत्तहिद करने के लिए वो क्यों घूम रहे हैं, वो आगे की बहस है। लेकिन आज जो है कि हैदराबाद के बाद में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई खिला जाना जाता था तो वो था निज़ामाबाद। अरे आजकल की तो मुस्लिम क़यादत ऐसी हो गई टीआरएस की, गांधी जी के 3 बंदर हो गए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बस बेचारे महमूद अली को बिठा दिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ बोलने के लिए। एक रबर स्टाम्प होम मिनिस्टर को बिठा दिए। उसके बाद में मुसलमानों की क्या कदर है टीआरएस में, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। निजामाबाद से थोड़ी दूर पर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है बोधन, जहाँ पर 2 मरतबा एक मुसलमान एमएलए इलेक्ट होता है आमिर शकील के नाम पर। मेरे से कोई सियासी इख्तिलाफात होंगे, लेकिन आमिर शकील को मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी गई? रेड्डी के 10, राव के 5 और ना जाने कौन से कम्युनिटी की सबको मिनिस्ट्री मिलती है। तुम्हारा एक नंबर का कंकर इलेक्शन जीतता है और उसको मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है। इसलिए नहीं दी जाती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफत कर रहे हैं आमिर शकील की, इसलिए हम मिनिस्ट्री नहीं देते। वाह 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 वाह, यानी अन्ना कैसा गोल फिरा रही। देखो, जैसा बचपन में हम म्यूजिकल चेयर खेलते थे, हर राउंड में एक चेयर गायब होती, अन्ना मुसलमानों के साथ ऐसा खेल खेल रही। कविता अगर निजामाबाद आएगी तो रोक कर कविता को पूछे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, रोक कर कविता को पूछे कि मेरा हॉस्पिटल कहाँ है, रोक कर कविता को पूछे कि मेरा 2 बेडरूम फ्लैट कहाँ पर है। रोक कर कविता को अपने हकायक को पूछो। ऐ मुसलमानों, तुम में सवाल करने की सलाहियत पैदा करो। तुम राव रेड्डी अन्ना के पीछे धोती पकड़ कर मत फिरो। तुम अपने बच्चे को लीडर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि वो तुम्हारा दिफा कर सके। यार जिंदा समझता अपने आप को ऐसा खुश महसूस कर रहा हूँ कि जो मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल होकर आज मैं अपने दफ्तर का इनाग्रेशन अमजदुल्ला खान साहब खालिद साहब से इनाग्रेशन करा के अपने आप को बहुत खुश महसूस। और आगे जितने भी मजलूम मुसलमान, जितने भी SC ST है, उनकी खिदमत करने का मुझे जो भरोसा करके मौका दिया जा रहा है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपने चंद अल्फाज को पेश किया। शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578,
और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वाले हद से ज्यादा पैसेंजर को भरते हुए तेज रफ्तार गाड़ियां चलाए जाने पर गाड़ियों पर जुर्माने आयद करते हुए गाड़ियों को सीज किया जा रहा। व्हीकल इंस्पेक्टर यशवंत कुमार का बयान। अवाम के जानों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कानून अपनाएं और हादसा से बचे। इडपली मंडल के अंबम गेट के पास मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यशवंत कुमार की क़ियादत में तमाम गाड़ियों की तनखी की। हद से ज्यादा पैसेंजरों को ऑटो में बिठाने वाले ऑटोओं को रोकते हुए इन गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए और इस मौके पर 7 गाड़ियों को सीज कर दिया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीपी सज्जनार के हुक्म के मुताबिक तमाम गाड़ियों की तनखी की जा रही। संक्रांति त्योहार के मौके पर अवाम की जान की हिफाजत के लिए गाड़ियों की तनखी की जा रही। हर फर्द सही सलामत घर पहुंचने के लिए हिफाजती इंतजामात को लेकर ये इक़दाम किए गए हैं। अपने घर अपनी मंजिल सही सलामत पहुंचने के लिए अवाम सरकारी बसों का सफर करे। प्राइवेट गाड़ियां हद से ज्यादा तेज रफ्तार चलाए जाने से हादसात के आसार पाए जाते हैं। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स को हद से ज्यादा पैसेंजर भरकर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने से ममानत की गई। इस मौके पर आरटीसी डीएम स्वामी, सीआई जानाबाई, स्टाफ विजय कुमार, प्रसाद, रहमान, संदीप व दीगर मौजूद थे। लोग बस छोड़ के कोई प्राइवेट व्हीकल्स में जाते हैं तो उनके लिए ड्राइव है, ऑटो वालों के खिलाफ नहीं है। समझे आप बात को? इसके लिए क्यों बोले तो अगर हम कोई तूफान हो वो आरटीसी डिपो से 200 मीटर्स तक रखने का परमिशन नहीं है। बोले तो साहब एक बोर्ड लगाते हैं, आप सबको मीटिंग पे बुलाते हैं, वहाँ पे बुलाने के बाद सबको इतना करते हैं, इन्फॉर्मेशन के बाद स्पेशल ड्राइव रहता। ठीक है, कोई पहली बात है। और निजामाबाद से इधर जो फिर रहे बोले तो एक्चुअली अपना रेट आपका परमिट कितना रहता है 30 किलोमीटर का रहता, आपके घर से 60 किलोमीटर रहता है। मगर उनके पास क्या है बोले तो इंडिविजुअल पैसेंजर ले जाने का परमिट उनको है। आपको क्या है, एक फैमिली वाले 2 आदमी 3 आदमी ले जाने का परमिट आपको మరియు ఆర్టీఏ సంయుక్త తనిఖీల్లో భాగంగా నిజామాబాద్ బోధన్ రూట్లో అంబం గేట్ వద్ద తనిఖీలు చేపట్టడం జరిగింది। ఇందులో నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తిరుగుతున్న 6 ఆటోలను సీజ్ చేయడం జరిగింది। అందులో ఒకటి మహారాష్ట్ర ఆటో రిక్షా। దయచేసి మహారాష్ట్ర వాహనాలు ఇక్కడ అలౌడ్ లేదు కాబట్టి తెలంగాణలో రావడానికి వీల్లేదు। తర్వాత పరిమితికి మించి అందులో 10 మంది పైగా ప్రయాణికులు ఉండడం నిర్ణయించాం కాబట్టి అలాంటి వాటిపై తప్పకుండా చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాం కాబట్టి అందరూ కూడా నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ అధిక పరిమితులు ఉండకుండా సరైన ధృవపత్రాలు పెట్టుకొని తర్వాత ఎక్కడైతే ఆర్టీసీ బస్సెస్ ఉన్నాయో ఆర్టీసీ బస్సెస్లో ప్రయాణిస్తూ సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को कामयाब करने के लिए ओहदेदार मशवरे देते हुए गांव की अवाम में शऊर बेदारी लाए। एमपीपी रजनी किशोर का बयान। रेंजर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को लेकर एमपीडीओ शंकर की क़ियादत में आईकेपी, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स को शऊर बेदारी मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर एमपीपी रजनी किशोर मेहमान खुसूसी ने बात करते हुए बताया कि इस माह की 18 तारीख से हर गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज अमल में लाया जाएगा। आंखों से मुतासिर अफराद को इस कैंप में अपनी तशख़ीस कराने में अवाम की मदद करने ओहदेदारों को ताकीद की गई। अब तक मंडल में 23,000 से ज़ायद मुतासरीन की शनाख्त की गई है। इन सभी मुतासरीन को 18 तारीख के दिन आंखों का मुआयना करते हुए जरूरत पड़ने पर इनकी आंखों का ऑपरेशन करते हुए मुफ्त आंखों का चश्मा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, एमईओ गौस मोइनुद्दीन, डॉक्टर विनय कुमार, मंडल ओहदेदार श्रावण, एपीएम चिन्नయ్య व दीगर मौजूद थे। కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ని మనం 18 రోజు ప్రారంభించుకుంటున్న సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఆశా వర్కర్స్ అలాగే ఐకేపీ సిబ్బంది, అంగన్వాడీ వీళ్ళందరితో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ 18 రోజు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు 18 సంవత్సరాల పైబడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాను। రెంజల్ మండల్ మొత్తం మీద కూడా 23,000 మంది ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను। అలాగే ప్రతిరోజు 18 రోజు మధ్యాహ్నం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాము। ఫస్ట్ రోజు 100 మంది, అలాగే ప్రతిరోజు 100 రోజుల ప్రోగ్రామ్ ఇది। ఈ 100 రోజులు కూడా ప్రతిరోజు 180 మెంబర్స్ రావాలని
रियासत भर में सीएम केसीआर हुकूमत डबल बेडरूम्स के नाम पर अवाम को बेवकूफ बना रही। डबल बेडरूम्स के लिए मंजूर किए गए फंड्स में गोलमाल का अंदेशा। एमपी डी अरविंद का सहाफती कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद के जिला बीजेपी ऑफिस में एमपी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में इक़्तिदार पार्टी की जानिब से क्राइम रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे। डबल बेडरूम अवाम के लिए सीएम केसीआर का चमत्कार है। 2020-21 में इन्होंने 10,000 करोड़ बजट मख्तस करते हुए इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया। फिर वो बजट कहाँ गया? इन्होंने सीएम केसीआर से रास्त सवाल पूछा। इसी तरह 2021-22 में 10,875 करोड़ रुपए डबल बेडरूम के लिए मख्तस करने का ऐलान किया। फिर इसके बाद इस बजट को 4,800 करोड़ रुपए कम करने का ऐलान करते हुए वो भी खर्च नहीं किए, क्योंकि इन्होंने ऑडिटिंग में इसका कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता बजट में 12,000 करोड़ मख्तस किए जाने का ऐलान करते हुए जाती प्लाट रखने वालों को जाती घर बनाने के लिए 5 से 6 लाख का ताउन का ऐलान करते हुए अब जरूरतमंदों को सिर्फ 3 लाख रुपए ही जा रहे। आज तक तेलंगाना हुकूमत ने डबल बेडरूम के लिए कोई फंड्स का इजरा नहीं किया। इस मामले पर हाउसिंग वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को जवाब देने का इन्होंने मुतालबा किया। इन्होंने वेमुला प्रशांत रेड्डी से सवाल करते हुए बताया कि जख्तियार में 40% डबल बेडरूम अक़लियतों को देने पर ऐतराज किया। फसल बीमा अमल करते हुए हल्दी किसानों को नुकसान से बचाने एमपी अरविंद ने वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुतालबा किया। गरीबोడు ఆరు ఇలాజ్ చేసుకుంటే గరీబోడు ఇలాజ్ చేసుకుంటే ఆరోగ్య బీమాల 30% కమిషన్ రాదు. ఈడనే బొక్కలు తిరిగేటట్టున్నాయి తెలంగాణలో. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అట దూసుకుపోతుందని ఒక పేపర్ రాసిన వాళ్ళ పేపర్. ఏంది ముక్కు దూసుకుపోతుందా? ఏం దూసుకుపోతుందండి? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అట దూసుకుపోతుందట దేశంలో. ఏడికి దూసుకుపోతుంది? పేపర్లో మాత్రం ముక్కు దూసుకుపోతుంది. ఒక స్కీమ్ చెప్పండి ప్రజలకి. 2,000 రూపాయల పెన్షన్ కొత్తది లేదు, కొత్త బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ లేదు. పేద ప్రజలకి ఏ స్కీమ్ కూడా కొత్త వాళ్ళని చేర్చుకున్నది లేదు. అధ్యయనం చేస్తే అది కేవలం 2 BHK ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కోసం అలకేట్ చేసినాయి, ఖర్చు పెట్టుడు లేదు. అంటే 3 లక్షల రూపాయలు ఖాళీ ప్లాట్ ఉన్నోడికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 3 లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది అనుకోవడం అసలు డబ్బులే కేటాయించలేదు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలా, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రజలైతే తర్వాత సంగతి, ప్రజల దాకా రాను కూడా రాదు. ఇది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్లకు జాయిన్ చేసుకుంటాం రండి, మీకు ప్లాట్ ఉంది కదా 3 లక్షలు ఇస్తాం. అసలు బడ్జెటే కేటాయింపు లేదు. మీకు కేవలం చేతికి ప్రొసీడింగ్ వస్తుంది అంతే, పైసలు రావు. గుర్తుపెట్టుకోండి, బడ్జెట్ కేటాయింపే లేదు. ఇట్లా 3.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకి మోసం చేస్తున్నాడు ఈ మోసగాడు కేసీఆర్ అనేటోడు. ఇది డబల్ బెడ్రూమ్ల హౌసింగ్ పరిస్థితి. ఇది హౌసింగ్ పోర్ట్ఫోలియో ఎవరి దగ్గర ఉంది? गुज़िश्ता 4 रोज से दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी। जिले में शदीद सर्दी की लहर, कपकपा देने वाली सर्दी। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी रिकॉर्ड की गई। इतवार के दिन जिले में दर्जे हरारत 14.3 तक नीचे गिर गया और शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई। जिले के कई मकामात पर कोहर देखी जा रही। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर का ऐलान करते हुए अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया, ताकि शदीद सर्दी की लहर से सेहत पर मुबस्सिर असरात से लोग महफूज रहे। सुबह 9 बजे से कब्ल और शाम 7 बजे के बाद घर में रहने को तरजीह देने का मशवरा दिया जा रहा। आइंदा 1 हफ्ते तक सर्दी की लहर का इंकशाफ किया गया। माह दिसंबर के अवाखिर में दर्जे हरारत में इजाफा होने से ये ख्याल किया जा रहा था कि सर्दी का मौसम खत्म हो चुका, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी की वजह से शदीद सर्दी की लहर चल रही। सरकारी अहकामात के मुताबिक हर गांव में बच्चों की हिफाजत और इनके हुकूक की कमेटियों की तश्कील दी जाएगी, ताकि कम उम्र नाबालिग बच्चों की जबरदस्ती शादियों की रोकथाम की जा सके। ICDS सुपरवाइजर प्रिया दर्शनी का बयान। सिरकुंडा मंडल के हुदूद में गोपिया तांडा, सरपंच तांडा, गुड्डा मेदर तांडा और मुख्तलिफ गाँव में बच्चों की हिफाजत, इनके हुकूक पर ICDS की क़ियादत में
शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाफिद किया गया। इस मौके पर सबसे पहले गांव-गांव का दौरा करते हुए बच्चों की हिफाजत और उनके हुकूक प्रोग्राम कम्युनिटियों को नामजद किया गया। मुकामी सरपंच, मुकामी चेयरमैन, आंगनवाड़ी टीचर्स को कन्वीनर नामजद करते हुए 14 अराकीन को इस कमेटी में लेते हुए कमेटियां तश्कील दी गई और इन कमेटियों को अतफाल और इनके हुकूक, इनकी हिफाजत के मुतल्लिक शऊर बेदारी लाएगी। इस मौके पर बताया गया कि बचपन की शादियां, नाबालिग शादियों से होने वाले मसाइल, बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोकथाम के मुतल्लिक हर फर्द के ताउन की जरूरत बताई। इस मौके पर ICDS सुपरवाइजर प्रियादर्शनी ने बताया कि कम उम्र नाबालिग शादियों के मुतल्लिक हर फर्द दिलचस्पी से रोकथाम में अपना किरदार निभाने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में सरपंचेस रामचंद्र, बाल किशन, पंचायत सेक्रेटरीज, आंगनवाड़ी टीचर्स, दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे। తర్వాత పాల్గొనే హక్కు, పిల్లలు పాల్గొనే హక్కు ఉన్నదని ప్రజల్లో చాలామందికి తెలియదు. ఈ విషయాలు తెలియపరచటకు ప్రభుత్వం వాళ్ళు బాల్య పరిరక్షణ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో 14 సభ్యులు ఉంటారు. ఇందులో మొదటిగా సర్పంచ్ గారు చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. కన్వీనర్గా అంగన్వాడీ టీచరు, మూడవది ANM గారు ఉంటారు, నాలుగవది ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, ఐదవది యూత్ వాళ్ళు, తర్వాత గ్రామ పెద్దలు, పొదుపు మహిళా సంఘాలు, బాలల పరిరక్షణ కమిటీలో బాలలు ఒకరు, బాలికలు ఒకరు, ఈ విధంగా కానిస్టేబుల్ గారు ఒకరు, మరియు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఒకరు, అలాగే కార్యదర్శి గారు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। टी चंद्रशेखर रियासती आंध्र प्रदेश के BRS पार्टी रियासती सदर नामजद। MLC की कविता से की मुलाकात, आंध्र प्रदेश सियासत पर कुछ देर मुशावरत, BRS पार्टी को मजबूत करने का दिया मशवरा। संक्रांति त्योहार के पेश नजर रंगोली के मुकाबले। रंगोली हमारी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा। ईदो त्योहार मिलजुल कर मनाना ही हमारी पहचान। मैं डी नीतू किरण। सावित्रीबाई फुले पहली काबिल खातून असातिज़ा। उनके राह रास्त पर चलते हुए नई नस्ल को म्यारी तालीम दे। फुले की जयंती तकरीब से डेविटर राव। CM केसीआर डबल बेडरूम्स के नाम पर जनता को बनाना ही बेवकूफ। डबल बेडरूम मंजूरा फंड्स में गोलमाल। MP अरविंद की सभापति कॉन्फ्रेंस। ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।